Hi everyone. So, if you are preparing for the upcoming NABARD Grade A examination, one thing which is very important for you is the NABARD Annual Report 2024-25, which has been released recently by the organization. I have already provided you guys the first part of this particular report. So, total 10 chapters हैं इस report में 5 chapters हमने पिछली वाली session में जो part 1 था उसमें हमने complete कर लिया था. Now, in this particular video, in this particular class, we are going to talk about the rest of the 4 chapters. Now you will be saying 4 chapters क्यों भाई? Because जो इसका chapter number 9 है, that talks about that talks about the staff of NABARD, and I believe that is not required for the examination. उसमें ये बोला है कि कितने स्टाफ है, कहाँ कहाँ पे कौन से स्टाफ्स हैं, ये सब की बात हुई है, उनकी सैलरीज वगैरह इन सब की बात हुई है. So I believe that is not required for the examination. So we'll be covering rest of the 4 chapters. So out of 10 विल बी कवरिंग 9 चैप्टर्स. 5 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं इन द फर्स्ट पार्ट. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द वीडियो सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल एंड प्लीज वॉच दैट रिपोर्ट. और आज हम करेंगे बाकी 4 चैप्टर्स इन द पार्ट 2 ऑफ NABARD एनुअल रिपोर्ट 2024-25. चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद द चैप्टर नंबर 6, दैट इज क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. क्रेडिट डिलीवरी, क्रेडिट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो देखो भाई, NABARD का जो है ना, एक देयर इज अ NABARD हैज अ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग in providing access to credit to the agriculture sector and to the rural sector as well, rural industries. ठीक है. So to advance development through credit, NABARD adopts a three pronged approach. ठीक है. Credit accessibility को increase करने के लिए NABARD has a three pronged approach, which is number one, it plays a pivotal role in credit planning and monitoring. ठीक है. It has a major role in planning of credit, right? How the credit is going to be distributed in the sector and monitoring of the credit as well. It ensures last mile credit delivery through refinance and direct finance products. So there are a lot of refinance and direct finance products of NABARD which ensures the last mile credit delivery, because that is the objective behind establishing the NABARD. It deepens the financial inclusion to stimulate the rural credit demand. It not only takes care of the credit planning, it also takes care of the financial inclusion as well. क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटीज तो हम तभी दे पाएंगे जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा मार्केट में, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है. राइट नाउ अगर हम फाइनेंशियल 25 की बात करें, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, टोटल 28.7 लाख करोड़ ऑफ एग्रीकल्चर वाज डिसबर्स्ड एंड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द टारगेट वाज 27.5 लाख करोड़, which means NABARD has achieved a target of 105%, even more than the targeted amount. 27.5 लाख करोड़ का टारगेट था एंड टोटल डिसबर्स्ड अमाउंट इज 28.7 लाख करोड़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है. Talking about long-term finance, so the amount is 99,399 crores during financial 25, and southern region accounted for the highest share of long-term refinance at 41.8% out of all the region. ठीक है. उसमें जो सदर्न रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग की गई, और आउट ऑफ टोटल रीफाइनेंसिंग यानी कि 99,399 करोड़ में से 41.8% अमाउंट वाज डिसबर्स्ड टू द सदर्न रीजन. ठीक है. नाउ दिस अमाउंट यू नीड नॉट रिमेंबर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा. जो अमाउंट, जो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है जी. Talking about short term refinance, which is done, short term refinancing is provided for meeting the production and working capital needs of the farmers, of the weavers, of the rural artisans and other small industries, right? And during the previous financial year, 1.9 lakh crores of short term refinance was disbursed, and again in the short term refinancing as well, southern region accounted for the highest share. ठीक है. और कितना था जी? 45.7%. This number is not required. This however is very important. Short term refinance पूछा जा सकता है, because short term refinance is even more important than the long term finance. There have been some new initiatives in credit refinance in financial 25. सबसे पहले installation of solar rooftop systems in the residential sector. ठीक है. इसमें क्या है? NABARD is promoting in fact solar energy adoption in the rural areas and small towns. How? By providing concessional refinance. Concessional refinance मतलब NABARD is providing loan to the financial institutions, and these financial institutions are in turn providing loans for the solar energy adoption. ठीक है. ठीक है. ये किसको दे रहे हैं? ये रूरल रेजिडेंट्स को दे रहे हैं ताकि वो सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकें. ठीक है.
and this is being done at lower rate of interest, and that is why it is called as concessional refinance. Clear? And this refinance is being provided for rooftop solar systems ranging from 200 watt to 10 kilowatt, right? Rural housing with solar rooftop, this is something similar. ठीक है, ये बिल्कुल similar ही है. It is also being implemented by NABARD. There is a 0.5% interest rebate on reimbursement basis and the corpus is 200 crores. अब इसमें इन दोनों में difference ये है, here the support is provided through the concessional refinance and here the support is provided through the rebate in the interest rate, that is 0.5%. ठीक है, although बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चलो थोड़ा बहुत भी है तो है. उसके बाद इंश्योर 2.0 जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था, तो इसका क्रेडिट डिलीवरी में, क्रेडिट प्लानिंग में क्या रोल था. सो अंडर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, the claims under this particular scheme are submitted on Ensure 1.0 portal over the past few years, and now of course Ensure 2.0 has been launched. So obviously it will improve the functionality and it will also ease the operations of NABARD regarding this submission, the submission of claims under the agriculture infrastructure marketing infrastructure scheme. ठीक है, Ensure 2.0 1.0 का एडवांस वर्जन है. Ensure 1.0 में क्या होता था, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है उसके क्लेम्स सबमिट किए जाते थे. तो ऑफ कोर्स Ensure 2.0 इज गोइंग टू ईज आउट दैट फंक्शन एज वेल. ठीक है जी, क्लियर है. आगे चलो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बात करें हम तो यू नो with targeted support from financial inclusion fund, NABARD has reinforced last mile connectivity. How? Through infrastructure creation, through digital enablement, through policy advocacy, through awareness generation campaigns. And as on 31st March 2025, cumulative sanctions under financial inclusion funds stood at 6233.3 crores. ठीक है, ये नंबर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, there is no need. There is a learning management system for RCETs. RCET क्या होते हैं? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. उनके लिए एक LMS डेवलप कर रहा है NABARD. It has yet not developed. ठीक है, and it is being done in collaboration with IIT Madras. It is named as REAP RSETI e-learning AI platform. REAP RSETI e-learning AI platform. What this AI platform is going to do? So it will be a centralized LMS and it will provide skill development courses across 64 languages in 64 courses in 12 languages with 4400 hours of curated content. So basically it will be a AI based skill development training program and it will be done through a learning management system and it is called as what? REAP. REAP RSETIs. REAP RSETI, REAP RSETI, and it is of course being developed by NABARD in collaboration with IIT Madras. This is very important. So ये था chapter number 6. Now coming to the chapter number 7, that is the supervisory role of NABARD. First of all, you need to remember that which all entities are being supervised by NABARD. So RRBs, rural cooperative banks, district central cooperative banks, primary cooperative agriculture and rural development banks, state cooperative agriculture and rural development banks, and state cooperative banks. ठीक है, out of all these entities, do remember the RRBs and RCBs, यानी कि regional rural banks and rural cooperative banks. These are supervised by NABARD, but these are of course regulated by RBI only. ठीक है, so there is a difference. और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार RBI में NABARD के इंटरव्यूज में पूछा जाता है ना, कि इस तरीके से क्वेश्चन होता है that why RRBs are regulated by NABARD and regulated by RBI and supervised by NABARD. तो इस वाले से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखेंगे. खैर इसकी बात हम आगे करेंगे जब हम इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे. RRBs and RCBs are regulated by RBI and supervised by NABARD under section 35(6) of the Banking Regulation Act of 1949. Clear है? So these are the entities supervised by NABARD. ठीक है, ध्यान रखेंगे. Now what are the major developments in the supervisory ecosystem in previous financial year? सबसे पहले there is a enhanced CAML SC based supervisory rating model. तो भैया ये CAML SC क्या होता है? ये एक रेटिंग मॉडल होता है based on which, ये एक रेटिंग assessment model होता है, rating model होता है based on which the banks, the financial institutions are being supervised by the regulators or regulated by the regulators. ठीक है, now आप लोगों को मुझे बताना है कि CAML SC की फुल फॉर्म क्या है. चलिए देखते हैं कितनी अच्छी आप लोगों की तैयारी है NABARD की. लेट्स सी, क्योंकि इतना बेसिक फाइनेंस तो आपको आना ही चाहिए. CAML SC की फुल फॉर्म बताओ. नाउ जो CAML SC बेस्ड सुपरवाइजरी रेटिंग मॉडल है, इसको एनहांस कर दिया गया, इसके फीचर्स को एनहांस कर दिया गया. ठीक है, सुपर फास्ट
super soft application. Super soft application is there which was launched on NABARD's 41st Foundation Day, that was on 12 July of 2022. ठीक है, और ये क्या है? It conducts through this application statutory inspections are being conducted, and in previous financial year the statutory inspection of 307 banks which included 43 RRBs, 34 STCBs and 230 DCCBs were undertaken. ठीक है, ये सारे नंबर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, जस्ट रिमेंबर देयर इज अ सुपर सॉफ्ट एप्लीकेशन फॉर कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन ऑफ द सुपरवाइज्ड बैंक्स बाय द NABARD. ठीक है, क्लियर है? Then a senior supervisory managers program was launched by NABARD in collaboration with College of Supervisors RBI and the National Bank Staff College of Lucknow. ठीक है, this was a dedicated program for the officers of NABARD. ठीक है, a complaint management system was also launched in April 2022 to facilitate the seamless transition of complaints to the regional offices. जो complaints आती हैं local offices में, उनको regional offices तक directly पहुंचाने के लिए this complaint management system was launched in April 2022. All right, so that was, my dear friends, chapter number 7. I hope it is clear. ठीक है, आगे चलते हैं. चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 क्या है जी? एम्पावरिंग रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, जो रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेजरली, उनको NABARD कैसे एम्पावर करने का काम करता है. तो द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, इट कंप्राइजेस 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसमें दो तरीके के हैं. कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में दो तरीके के स्ट्रक्चर है, एक तो है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में फिर 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ये सब याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है. शॉर्ट टर्म में 3 तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं. कौन से? STCBs यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एट द स्टेट और एपेक्स लेवल, DCCBs यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS, जिसका नाम आपने सुना होगा, एट द विलेज लेवल. राइट, तो 3 तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अंडर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर. ठीक है, लेकिन सारे स्टेट्स में ये 3 टियर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है. 12 states have this 3 tier system. 7 states have a mixed tier system which comprises both 3 tier and 2 tier structures. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 2 tier है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 3 tier है, ऐसा है. And there are 15 states which follow the 2 tier structure. तो ज्यादातर स्टेट्स तो भाई 2 tier स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहे हैं. राइट, तो अगर हम शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, ठीक है, फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यू मल्टीपर्पज प्राइमरी कोऑपरेटिव्स. ये आपको याद होगा सबको. इन 2023 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ 2 लाख न्यू PACS एंड कंप्यूटराइजेशन उसके बाद फिर अनाउंस किया गया. देन वी हैव नेशनल कैंपेन ऑन कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स. ये क्या है? देखो, इसमें 2 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे इन फाइनेंशियल 24. ठीक है, कहाँ पे? बनासकाठा एंड पंचमहल DCCBs ऑफ गुजरात. ठीक है, बनासकाठा और पंचमहल DCCBs ऑफ गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. किस लिए? टू प्रमोट राउटिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अदर कोऑपरेटिव बॉडीज थ्रू द कोऑपरेटिव बैंकिंग नेटवर्क. ठीक है जी, क्लियर है? इसका काम क्या था? टू प्रमोट राउटिंग ऑफ जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ऑफ द प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अदर कोऑपरेटिव बॉडीज, उनको राउट करना. इसका काम ये था, उनको बेसिकली सिंप्लीफाई करना, समराइज करना. राइट, then a PACS accelerator pilot project is being implemented by NABARD under Unnati phase 2 initiative. There is an initiative Unnati phase 2, उसके अंदर PACS accelerator pilot program चल रहा है, and this is for providing support to the PACS in diversifying into the non credit business activities. यानी कि ऐसे business activities जिनमें उनको लोन लेने की या क्रेडिट लेने की जरूरत ना पड़े, सेल्फ सस्टेनिंग हो, वो उनको खुद से ही रन कर सकें वो. ठीक है, and as part of this pilot phase the program is being implemented across 30 PACS in 3 states of Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. This is very important to be remembered. ये पूछा जा सकता है, in which 3 states the PACS accelerator pilot project is being implemented by NABARD? Rajasthan, UP and Telangana. ठीक है, then we have a cooperative development fund. It was established by NABARD in financial 1993 with an initial corpus of 10 crores. उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर 2 की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. नंबर 1 स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, एंड देन वी हैव प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स. ठीक है, ये 2 तरीके के 2 टियर फ्रेमवर्क में चलता है लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में.
ठीक है। अब थोड़ी सी बात दोस्तों रीजनल रूरल बैंक्स की हम करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। सो एज यू नो, regional rural banks, the first regional rural bank was established in 1975. The principal the major objective of RRBs is to promote the rural economic development. How it is promoting the rural economic development? By providing credit facilities and other financial services to the small and marginal farmers, to the laborers, to the rural artisans, to the small rural industries. ठीक है, इनका काम क्या है, रूरल एरियाज में जाके जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है या फिर फॉर दैट मैटर छोटा छोटा क्रेडिट है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। क्लियर, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, राइट। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है आरआरबीज की, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता होगा टोटल 28 आरआरबीज हैं आज। ठीक है, 1 अप्रैल या आई थिंक 1 मई से अप्रूव हो गया था, लेकिन जब लास्ट ईयर फाइनेंशियल, ये जो रिपोर्ट है ये कब की है, फाइनेंशियल 2024-25 की है, उस टाइम कितने आरआरबीज थे, 43। तो ये सब जितनी भी हम आरआरबीज के बारे में पढ़ेंगे, इट विल बी अबाउट द 43 आरआरबीज, नॉट 28। ठीक है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ऑल आरआरबीज वाज 7148 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल 25। ठीक है जी, टोटल प्रॉफिट कितना था, 7148। देन कंसोलिडेटेड CRAR reached an all-time high of 14.4% as on 31st March 2025. ठीक है, the gross NPAs declined to 5.3%, which is the lowest in the last 13 years. पिछले 13 सालों में सबसे कम ग्रॉस एनपीए गया है 5.3% का। and the credit to deposit ratio has been increased to 73.8%, which is the highest in the last 38 years. पिछले 38 सालों के इतिहास में 73.8% जो है वो हाईएस्ट क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, कंबाइनिंग ऑल आरआरबीज। ठीक है जी, क्लियर है। अमलगमेशन की बात इन्होंने पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में कर दी थी और अब हो चुकी है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल 25 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर फेज 4 ऑफ अमलगमेशन ऑफ आरआरबीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द विजन ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, एंड इट हैज नाउ बीन अचीव्ड। 43 से कितने हो चुके हैं, 28 हो चुके हैं आरआरबीज हमारे देश में। क्लियर है। फिर रिकैपिटलाइजेशन के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड 10,890 करोड़ फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन। ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल 22 एंड फाइनेंशियल 23, दो फाइनेंशियल ईयर में 10,890 करोड़ रुपए रिकैपिटलाइजेशन के, आरआरबीज के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार ने दिए हैं। ठीक है, देन what are the initiatives for promoting MSME lending by RRBs? So the government of India, my dear friends, has prioritized the increasing lending by RRBs to MSME enterprise, and to facilitate this, RRB branches were mapped to MSME clusters to align the credit delivery. यानी कि क्या करा, जो RRB के ब्रांचेस थे, ठीक है, उनको क्या करा, MSME के जो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर है जहाँ पे मान लेते हैं मैट बनता है, एक क्लस्टर है जहाँ पे मान लेते हैं अचार बनते हैं, तो ये क्लस्टर्स हो गए। तो इनसे इनको कनेक्ट कर दिया डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट, इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो ये था, ये एमएसएमई लेंडिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया बाय द आरआरबीज। आरआरबी इन फोकस मैकेनिज्म, ठीक है, देयर इज एन आरआरबीज इन फोकस मैकेनिज्म व्हिच फंक्शंस एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो इफ एनी पर्टिकुलर आरआरबी इज एट द वर्ज ऑफ डिटेरिएशन, फाइनेंशियल डिटेरिएशन उसकी हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आरआरबी इन फोकस मैकेनिज्म है व्हिच वर्क्स एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि उसके फाइनेंशियल डिटेरिएशन को हम प्रिवेंट कर सके, एंड पॉसिबल इंक्लूजन अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर उसको लाया जा सके, मतलब पीसीए फ्रेमवर्क से उसको दूर रखा जा सके, सॉरी। क्लियर। देन देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग डेवलप्ड by NABARD, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, एंड इट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ये सारे आरआरबीज के अक्रॉस इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, CDCI क्या करेगा, इट विल डिजिटलाइज, इट विल ऑटोमेट एंड इट विल स्ट्रीमलाइन द क्रेडिट प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट फॉर ऑल द लोन प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय आरआरबीज। आरआरबी जितने भी लोन प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं उनकी डिजिटलाइजेशन, उनके ऑटोमेशन और उनके स्ट्रीमलाइनिंग का काम करेगा, ठीक है, and it is target that it is going to be rolled out by the end of September 2025, although we are in the month of November 2025, अभी ये नहीं हुआ है, but hopefully in the upcoming 1 or 2 months it is going to be implemented.
ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप द चैप्टर नंबर 8 वाज आल्सो क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, चैप्टर 9 इज ऑफ नो यूज फॉर अस। Let's quickly jump to the chapter number 10, which is the most important chapter, especially if I talk about the interview part. इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नबार्ड जा रहे हो, आपको नबार्ड की एटलीस्ट फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, कितने प्रॉफिट बनाए, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से बोरोइंग्स हुई, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो टोटल बैलेंस शीट साइज की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सो इट्स टू दैट 9.8 लाख करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2025, एंड इट इज अ ग्रोथ ऑफ 8.1% इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ओवर द प्रीवियस ईयर, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में 8.1% की ग्रोथ होती है, तो अच्छी ग्रोथ मानी जाती है, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस 5 years, so in the last 5 years NABARD's balance sheet has grown by 50%. It was 6.6 lakh crore in financial 21, and it is now in financial 25 it is 9.8 lakh crores, and I think it is a commendable performance by NABARD। और जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितनी है जी, 8.4% की। ठीक है, क्लियर है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर NABARD, पैसा कहां से आता है? तो देयर आर कैपिटल रिजर्व्स एंड एनआरसी फंड्स एज ऑन 31 मार्च 2025। द पेड अप कैपिटल स्टूड एट 17,080 करोड़। पेड अप कैपिटल कितना है जी, 17,080 करोड़, अगेंस्ट एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 30,000 करोड़। तो ये भी याद रखना है, NABARD का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, 30,000 करोड़, और अभी पेड अप कैपिटल कितना है एज ऑन 31 मार्च 2025, 17,080 करोड़। ठीक है। ओन फंड्स में क्या क्या आते हैं, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इट स्टूड एट 80,494 करोड़ एंड इट वाज 8.2% ऑफ द बैलेंस शीट। अपना पैसा NABARD का कितना है, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का 8.2% ऑफ द बैलेंस शीट, which is again a good percentage. Then national rural credit funds, it amounted to 16,110 crores। क्लियर है जी। चलिए डिपॉजिट्स की बात करो भैया। डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे कितने कितने डिपॉजिट है और कौन कौन से फंड में कितना कितना पैसा आया। तो इन RIDF, फॉर RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड 35,000 करोड़, राइट। NABARD mobilized 36,818 crores and repaid 29,020 crores in various tranches under the RIDF deposits। RIDF deposits में NABARD ने कितना पैसा रीपे किया, 29,020 करोड़ रुपए वापस कर दिया। ठीक है। Additionally 150 crores were mobilized and 80 crores were repaid under the food processing fund deposits, and as on 31st March 2025 the outstanding deposits stood at 2870 crores under the warehouse infrastructure fund and 550 crores under the food processing fund। ठीक है जी। 31 मार्च 2025 तक आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कितना था वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, इट वाज 2870 करोड़, एंड फूड प्रोसेसिंग फंड में इट वाज 550 करोड़। क्लियर है। आगे चलते हैं, बोरोइंग्स पे आ जाओ भैया, बोरोइंग्स पे आ जाओ। पैसा कितना उधार लिया हुआ है, तो द बोरोइंग्स आर 4.4 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, while the NABARD's total outstanding borrowings, जो टोटल मोबिलाइज्ड कॉर्पस था दैट वाज 4.4 लाख करोड़, लेकिन जो टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है पिछले सालों का भी मिला के वो कितना है, 5.8 लाख करोड़, राइट। कमर्शियल पेपर्स, CDs दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, term loans and non-convertible debentures made up more than 91% of NABARD's total borrowing portfolio। तो NABARD का 90% से भी ज्यादा पोर्टफोलियो 4 सोर्सेज से आता है। वो कौन कौन से हैं जी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, टर्म लोन्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इन सब की डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा दोस्तों, बिकॉज ये सब आपने अपने स्टैटिक सिलेबस में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो इफ आई विल बी गोइंग इनटू द टेक्निकल्स ऑफ ऑल द कीवर्ड्स ना, तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको 5 घंटे की ये क्लास हो जाएगी। ठीक है। इनकम पे आओ भाई, इनकम पे ये सारे नंबर्स याद रखने हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, कोई नंबर भी आप नहीं छोड़ सकते। 58,424 करोड़ फाइनेंशियल 25 में, और जो कि भाई ग्रोथ है 19.6% का। इनकम ग्रोथ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 20%। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 10,155 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 7,628 करोड़, अगेन कमेंडेबल परफॉर्मेंस। सब्सिडरीज की बात करो, सो आई होप यू नो दैट देयर आर 7 सब्सिडरीज ऑफ NABARD, राइट। एंड एज ऑन 31 मार्च 2025 द टोटल इन्वेस्टमेंट in the share capital of NABARD's subsidiaries stood at 649.6 करोड़। ठीक है, कितना है NABARD की सब्सिडरीज में शेयर कैपिटल कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट 649.6 करोड़। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर
NABARD subscribed an additional share capital of 25 crores in NAB Ventures and 20 crores in NABCons. ठीक है, और डिविडेंड्स कौन कौन से मिला? 4 से मिला. ठीक है, नैब किसान से मिला 3 करोड़, नैब समृद्धि से 2.3 करोड़, नैब फिन से 10.2 करोड़, नैबकॉन से 0.1 करोड़. बाकियों से डिविडेंड नहीं मिला, यानी कि बाकियों ने प्रॉफिट्स नहीं बनाए. राइट. अब थोड़ा सा जो बेसिक इस रिपोर्ट में था सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस के बारे में, तो उसमें बिल्कुल जो जो इसमें रिपोर्ट में था बिल्कुल हम वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. नैपफिन्स की बैलेंस शीट साइज की बात की गई 3839 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन 3591, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90.9 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69.1 करोड़. इसमें अगर आप चाहो तो इसकी बस बैलेंस शीट याद रख सकते हो, बाकी आप नहीं भी करोगे तो चलेगा. ठीक है. नैब किसान बैलेंस शीट साइज 3273 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन 3068 करोड़. एंड डू रिमेंबर, NAB Kisan entered into a partnership with Rabo Foundation to provide credit guarantee support for lending to agricultural corporates and startups. ठीक है, Rabo Foundation नाम याद रखना. और कौन सी सब्सिडरी? NAB Kisan. ठीक है. NABCons का बैलेंस शीट साइज 253 करोड़. नैब समृद्धि का एसेट साइज 21,000 करोड़. नैब वेंचर्स के बारे में इस एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि एज ऑन 31 मार्च 2025 द कंपनी मैनेजेस 2 फंड्स. एक तो है नैब वेंचर्स फंड 1 और एक है एग्रीश्योर फंड. ठीक है. नैब वेंचर्स फंड 1 का जो टोटल कॉर्पस है दैट इज 598 करोड़. दैट इज सक्सेसफुली डिप्लॉयड इट्स एंटायर इन्वेस्टेबल कॉर्पस ड्यूरिंग फाइनेंशियल 25. और जो एग्रीश्योर फंड है इट इज अ सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड with a total corpus of 750 crores. At least remember the total corpus of these two funds, NAB Ventures Fund 1 and AgriSure Fund. ठीक है. NAB Foundation received sanctions for 6 projects with a total financial outlay of more than 15 crores. And NAB Sanrakshan administered 2 flagship credit guarantee fund trust. Number 1, credit guarantee fund trust for FPOs. आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था FPOs वाली स्कीम में. And credit guarantee fund trust for animal husbandry and dairying. ठीक है, that is AHD trust. So that was all for this particular chapter as well, and that was all for the NABARD annual report, my dear friends. If you want to have the PDF of this class, just scan this QR code, join the Telegram channel and get the PDFs. जो भी आप लोगों के doubts हैं, please write down in the comment section. And if you want to ask me anything directly, you can just DM me on Telegram at Mashi Manish. Thank you very much, my dear friends, for being with me. Goodbye, take care, and God bless.